Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be doing a beautiful poem, Rain on the Roof, from the book Beehive, Class 9 CBSE, written by Coots Kinney. So before we discuss this poem in detail, let us talk about the poet. Coots Kinney was born on November 24, 1826, and he was an American lawyer, politician, journalist, and poet. He wrote this poem, The Rain on the Roof, which was actually set to music, and it became very popular. At last, he died in Ohio in 1904. So a very brief description about the poet. So my dear children, Coots Kinney, he was born on 24 November. He was an American poet, and apart of that, he was a lawyer, politician, as well as a journalist also. And this poem, The Rain on the Roof, is actually, this poem was set to music, okay? It has a rhythmic way, and this poem became very popular. And finally, in the year 1904, Coots Kinney, he died in Ohio. Ohio is a place in America. Now we'll discuss this poem in detail. So before we discuss this poem, let's go through the introductory lines. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. Now, in the introductory lines, it is stated that when the sky is covered with dark clouds and it starts raining when it happens, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या कभी आपने बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी है? जब बारिश की बूंदें आपके घर के छत पर जब पड़ती हैं, तो क्या आपने कभी उसकी आवाज़ सुनी है? तो माय डियर चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, नाउअडेज वी आर हैविंग दीज सीमेंटेड रूफ्स, वी आर हैविंग दीज सीमेंटेड हाउसेस, आज के समय हमारे जो घर बन रहे हैं वो सीमेंटेड के घर हैं और मजबूती के साथ घर बन रहे हैं, और ऐसे में बारिश की बूंदें अगर हमारी छत पर गिरें तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी. लेकिन यहाँ पे पोएट जिस प्रकार की घरों की बात कर रहे हैं, वो ऐसे घरों की बात कर रहे हैं जिन घरों के छत पर जो है शिंगल्स लगे हुए हैं. शिंगल्स मतलब यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, दीज आर कॉल्ड शिंगल्स, हिंदी में से पटरा कहते हैं, ठीक है ना. तो जब छत पर इस प्रकार की पटरियां लगी हों, इस प्रकार के शिंगल्स लगे हों, तो ऐसे में जब बारिश की बूंदें इन पर गिरेंगी तो स्वाभाविक है आवाज़ सुनाई देगा. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? And when we hear these, the sounds, when we hear this pattering sound of rain, what thoughts flash? Flash means to come, come in our mind. जब हम बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हैं तो कैसे ख्याल, कैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं. Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. And now in this poem, we will find out that when the poet, when he listened to the rain, what all ideas or what all things came in his mind. और इस पोएम में हम ये देखेंगे कि जब बारिश के बूंदों की आवाज़ पोएट ने सुनी तो उनके विचारों, उनके ख्यालों में कैसी बातें आई, उन्होंने क्या क्या चीज़ें याद की, क्या क्या चीज़ें सोची. ओके, नाउ विल स्टार्ट दिस पोएम इन डिटेल. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow. My dear children, you should be very careful because each and every word has a very, very deep meaning. Okay, you should be very careful. Okay, humid shadows means clouds full of moisture. ठीक है, ह्यूमिड शेडोज का मतलब होता है ऐसे बादल जो पानी से भरे हुए हों.
ठीक है, नमी से भरे हुए हों, ऐसे बादलों को हम यहां पर पोएट ने ह्यूमिड शैडोज कहा है। हॉवर, हॉवर मीन्स एन एक्ट ऑफ रिमेनिंग इन द एयर, ओके। इन हिंदी हॉवर मीन्स मंडराना, ओके, जब काले काले बादल आकाश में मंडराते हैं। ओवर ऑल दी स्टारी स्पीयर्स, ओके, स्टारी स्पीयर्स मीन्स स्काई फुल ऑफ स्टार्स, ठीक है। रात के समय जब आसमान एकदम साफ रहता है तो कैसा रहता है, पूरे तारे दिखते रहते हैं। लेकिन वहीं जब काले बादल पूरी तरीके से घेर लेते हैं तो क्या हो जाता है, जो तारे हैं या चांद है कुछ भी नहीं दिखता, ओके, पूरे काले बादल घिर जाते हैं तो अंधेरा और ज्यादा हो जाता है। एंड द मेलंकली डार्कनेस gently weeps in rainy tears, no? So what is happening here, the poet is talking about this melancholy darkness. Melancholy darkness means sadness, immense sadness, ठीक है। यहाँ पे जो एक प्रकार का अंधेरापन छा जाता है, पोएट इस अंधेरेपन को किससे तुलना कर रहे हैं, मायूसी से, उदासीपन से वो तुलना कर रहे हैं, ठीक है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये आसमान क्या कर रहा है, ये रो रहा है, ये आंसू बहा रहा है, ठीक है ना। जो घनघोर अंधेरा छा गया था वो क्या था, एक प्रकार से उदासी का माहौल था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब जो है बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो व्हाट इज हैपनिंग, लिटरली इट सीम्स एज इफ द स्काई इज वीपिंग, स्काई इज क्राइंग, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। ऐसे समय पर, ठीक है, जब बाहर बारिश हो रही है, ऐसे समय पर इट गिव्स इमेंस जॉय, इट गिव्स ग्रेट जॉय, टू होल्ड द पिलो और टू प्रेस द पिलो अगेंस्ट योर चेस्ट, ओके। ऐसे समय पर जो है आप जब एक तकिया को लेकर कस के अपने सीने से लगा लेते हैं तो वो जो फीलिंग है वो एकदम ही अलग है, ओके। मैं फिर से इन लाइंस को समझाने की कोशिश करता हूं। द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन दीज ह्यूमिड शैडोज, व्हेन दीज क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्चर और दीज डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, when these clouds literally hover around in the sky, at that time what happens, literally these huge clouds, they are full of moisture and they are moving around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrop which seems like tears falling from the sky, okay। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश क्या कर रहा है, रो रहा है। ये काले काले बादल चारों तरफ से छाए हुए हैं और ये जो हैं काले काले बादल, जब बारिश शुरू होती है तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश रो रहा है। ऐसे समय पर जो है तकिए को अपने सीने से लगाकर जो है आप जो फीलिंग आती है वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ऐसे समय पर जब बाहर बारिश होती रहती है तो सबसे अच्छी फीलिंग क्या आती है कि बिस्तर पे लेट जाओ। कॉटेज चैम्बर मीन्स रूम, ओके। कॉटेज मीन्स अ स्मॉल हाउस, ठीक है। तो एक छोटा सा घर है आपका, उसमें एक कमरे में, उस कमरे में जो बिस्तर है उसके ऊपर लेटकर तकिए को कस के अपने सीने से लगाकर जब आप उन बारिश की बूंदों की आवाज को सुनते हैं तो दैट गिव्स इमेंस हैप्पीनेस। वो बहुत ज़्यादा आपको अंदर से क्या कर देती है, हैप्पी, आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो ना, यू फील क्वाइट एक्साइटेड, यू आर वेरी हैप्पी। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स आपके सर के ऊपर, जो छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उन आवाज़ों को जब आप सुनते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. अब वो कहते हैं every tinkle, tinkle means हर एक बारिश की बूंद जब छत पर गिरती है, ठीक है, तो वो जो आवाज पैदा होती है, ठीक है ना, टिंकल मीन्स दैट साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट ईच ड्रॉपलेट ऑफ द रेन वेयर ऑन द शिंगल्स, है ना, शिंगल्स, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। These things are called shingles, What are shingles? A thin flat tile made of wood, slate, etc. that is fixed in rows to make a roof or wall कवरिंग, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से छत के ऊपर सजाया जाता है कि पूरा छत जो है ढक जाए, कवर हो जाए,
ठीक है, दीज आर कॉल्ड शिंगल्स। तो इनके ऊपर जब बारिश की एक एक बूंदे गिरती हैं तो एक एक बूंदे क्या है, हैज एन इको इन द हार्ट, मतलब हर एक बूंद जो है इनके हृदय में, पोएट के हृदय में गूंज रही है। इको मीन्स व्हाट, गूंजना, ठीक है ना, दैट आवाज जो गूंज रही है उनके दिल में। और जैसे जैसे इन बारिश की बूंदों की आवाज वो सुन रहे हैं, 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और वो क्या हो जाते हैं, उनका जो जब वो सोचने में शुरू कर देते हैं ना, इमेजिनेशन, कल्पना करना शुरू कर देते हैं। ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ पास्ट, पास्ट मेमोरीज, ठीक है। अब वो बीते हुए दिन, वो बीते हुए पल, वो यादें उनको आने, दिमाग में उनके आने लगती हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी उनके दिमाग में याद आने लगती हैं जैसे जैसे बारिश की बूंदें गिरती रहती हैं, ठीक है। And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, now what is happening here? Literally, अब उस बारिश के बूंदों को, उसकी आवाज़ को जब ये सुनते हैं तो इनको पुरानी बातें याद आने लगती हैं, मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज, बीते हुए पल, वो सुखद दिन, वो अच्छी अच्छी बातें याद आने लगती हैं अपने दिमाग में। और वो सब कैसे याद आ रही हैं? वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव्स, वीव देयर एयर थ्रेड्स, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो पुरानी यादें एक दूसरे से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पिक्चर, एक तस्वीर जो है बुन रहे हैं, ठीक है। एक तस्वीर, छोटी छोटी यादें, ढेर सारी हजारों छोटी छोटी यादें जब सब दिमाग में आकर वो सब आपस में मिलकर क्या बुन रही हैं? एक तस्वीर बुन रही हैं, ठीक है। एक इमेजिनेशन दिमाग में आ रहा है आपके, ठीक है। एक पिक्चर बन रहा है आपके दिमाग में। वूफ का मतलब यहाँ पे क्या है? एक पिक्चर बन रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जैसे जैसे मैं उन बारिश की बूंदों को, पैटर मीन्स व्हाट, द साउंड ऑफ द रेन, ठीक है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे मैं उस बारिश की आवाज को सुनता हूं वैसे वैसे मुझे पुरानी बातें जो हैं याद आना शुरू हो रही हैं। Now in memory comes my mother. Now the poet is literally remembering his mother. Okay. Now he is literally remembering his mother. वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं, ठीक है। And as she used in years agone. Agone means what? In the past. ठीक है। तो जैसे माँ को वो पिछले कई सालों से याद कर रहे हैं। These lines clearly show that now the poet's mother is not alive. इन लाइंस को देखने के बाद ये साफ समझ में आता है कि जो पोएट की मदर है वो अभी जिंदा नहीं है, ठीक है। तो काफी समय से अपनी माँ को याद कर रहे हैं, और जैसे पहले याद करते थे अब भी याद कर रहे हैं वो। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है, or she left them till the dawn. To regard means to take care, okay. The darling dreamers means the brothers and sisters of the poet, ठीक है, पोएट के जो बाकी भाई बहन हैं, ठीक है। or she left them till the dawn, or means what, before, ठीक है ना। तो अब वो याद कर रहे हैं जब बचपन का समय था, जब पोएट अपने बाकी भाई बहनों के साथ रात में बिस्तर पे लेटे रहते थे, तो क्या होता था, माँ आती थी, ठीक है, और बड़े प्यार से माँ क्या करती थी, इन सारे बच्चों को सुलाती थी, ठीक है। शायद कहानी सुना के सुलाती हो, लोरी सुना के सुलाती हो, या फिर प्यार से उनका सर थपथपा के सुलाती हो, प्यार करके जो है केयर, टू टेक केयर, एक्स्ट्रा केयर, ध्यान देते हुए सारे बच्चों को सुला देती थी। और एक बार बच्चे जब सब सो जाते थे गहरी नींद में, तब वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू लीव देम, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, फिर सुबह तक, ठीक है, भोर तक बच्चों को वो छोड़ देती थी कि बच्चे आराम से एकदम प्यारी नींद में, अपना सुखद नींद वो ले ले, आराम से सो जाए। अब सीधा बच्चों को मैं कब उठाऊंगी, अब भोर को उठाऊंगी, सुबह उठाऊंगी, अब सुबह तक बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज लाइन्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ठीक है ना। तो पोएट क्या कह रहे हैं, आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी माँ की वो प्यारी लुक ना, वो जिस प्यार भरी निगाहों से मेरी माँ मुझे और मेरे भाई बहनों को देखा करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन,
which is played upon the shingles by the patter of the rain. As I list means here listen, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं इन आवाज़ों को सुनता हूँ, कौन सी आवाज़, ये बारिश की बूंदें। ये बारिश की बूंदें कहाँ पड़ रही हैं, ये बारिश की बूंदें शिंगल्स मतलब क्या हुआ, जो छत है, ठीक है ना, छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं, वैसे वैसे मैं पुरानी बातों को याद कर रहा हूँ। मेरी माँ मुझे याद आ रही है, मेरी माँ का वो प्यार भरा चेहरा मुझे नज़र आ रहा है, और मैं उन यादों को, उन बातों को सोच कर मैं क्या हो जा रहा हूँ, आई एम लिटरली गेटिंग इमोशनल, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहा हूँ। और लिटरली वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बारिश लिटरली क्या कर रही है, उनको टेकिंग बैक टू दी ओल्ड मेमोरीज, ठीक है ना, वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातों में जो है उनको वापस लेके चली जा रही है। माय डियर चिल्ड्रन, समटाइम्स इट हैपन्स विथ अस ऑल्सो, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सब भी चाहते हैं, वी ऑल लव रेन, हम सब बारिश को बहुत पसंद करते हैं। और कई बार क्या होता है कि वी लव टू सिट at the window watching the rain with a hot cup of tea or something else। हमारे साथ भी होता है ना कि जब बहुत ज़ोरदार बारिश होती रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है खिड़की के पास बैठ के गरम गरम चाय पीना या फिर पुरानी पुरानी बातों को याद करना। तो पोएट यहाँ पे दूसरे तरीके से वो रेन को एंजॉय करते हैं। वो रेन को कैसे एंजॉय करते हैं, जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें जब छत पर गिरती है और उसकी आवाज़ जब उनको सुनाई देती है तो वो क्या करते हैं, वो जाके बिस्तर पर लेट जाते हैं और तकिए को अपने सीने से लगा लेते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, कैसे माँ जो है उन्हें प्यार किया करती थी, कैसे माँ उनको प्यार से सुलाया करती थी, और उन बातों को वो यहाँ पे याद करते हैं। सो दिस वॉज एक्चुअली द पोएम रेन ऑन द। वेल, नाउ लेट अस सी what all poetic devices are used in this poem. So my dear children, you must be thinking about what is this poetic device all about. So let me tell you, poetic devices are basically tools that a poet uses in his poem to create rhythm, to enhance the poem's meaning, or to intensify the mood or feeling of the poem. Okay, so I'll try to explain this in simple language. Poetic device एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से पोएट अपने पोएम में एक फील ले आता है, एक खूबसूरती ले आता है, और जो रीडर्स होते हैं, जो उस पोएम को पढ़ते हैं, वो लिटरली उस पोएम को फील कर पाते हैं उन पोइटिक डिवाइसेस की मदद से, और एक रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है पोएट की तरफ से, तो उसे कहा जाता है पोइटिक डिवाइस। ओके, आप और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली इट इज यूज टू ब्यूटिफाई द पोएम, ठीक है। पोएम की खूबसूरती में चार चांद लगाने का एक तरीका है पोइटिक डिवाइस। इट्स अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। इन हिंदी वी हैव दिस अलंकार, आपने सुना होगा अलंकार। सो इट इज जस्ट लाइक अलंकार इन इंग्लिश, फाइन। सो अब देखते हैं राइम स्कीम। ओके, राइम स्कीम क्या होता है, हर पोएम का एक राइम स्कीम होता है, ठीक है। So what is this rhyme scheme all about? ठीक है. So first of all, let us take this first stanza. Okay, the first stanza. Now very closely just monitor the first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Now, to find out the rhyme scheme of any of the poem, what you have to do is, first of all, select the first stanza, okay? Then, line by line, you have to find out the rhyme scheme. For example, the last word of the first line, we have to take the last word of each and every line, okay? हर लाइन का आखिरी वर्ड को लेना होगा, ठीक है, उसी से राइम स्कीम बन पाएगा। तो जो पहले लाइन का लास्ट वर्ड इज क्या है, हॉवर, ठीक है, HOVER, हॉवर।
एंड व्हाट इज द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकंड लाइन? स्पीयर्स, ठीक है। तो हॉवर और स्पीयर्स ये दोनों वर्ड्स आपस में राइम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वर्ड्स होते हैं ना कि कैट बैट, ये राइम कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। उसी तरह बीट नीट ये राइम कर रहे हैं। तो वैसे हॉवर और स्पीयर्स राइम नहीं कर रहे हैं। तो हॉवर को ए मान लेते हैं, स्पीयर्स को बी मान लेते हैं। थर्ड लाइन में आते हैं, लास्ट वर्ड क्या है? डार्कनेस। डार्कनेस क्या किसी से राइम कर रहा है? हॉवर, स्पीयर्स, डार्कनेस तीनों आपस में राइम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ठीक है। तो डार्कनेस लेट इट बी सी, उसको सी मान लेते हैं। देन कमिंग टू द फोर्थ लाइन, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ओके। टीयर्स, ओके। व्हाट अबाउट टीयर्स? इज इट राइमिंग विद एनी ऑफ द वर्ड? किसी और वर्ड से राइम कर रहा है टीयर्स ऊपर के कुछ वर्ड्स के साथ? अगर आप देखिए, यस, जो सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्पीयर्स, यू नो, स्पीयर्स इज राइमिंग विद द वर्ड्स टीयर्स, ओके। सो स्पीयर्स के लिए हमने कौन सा लेटर दिया था? बी। तो टीयर्स को भी हम क्या मान के चलेंगे? बी मान के चलेंगे, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, पिलो, द लास्ट वर्ड इज पिलो, राइमिंग? नॉट एट ऑल, ओके, लेट इट बी डी। Coming to the next line, last word bed, is it rhyming with any of the words? No, let it be E. Coming to the next word, okay, next line, last word patter, is it rhyming with any of the word? No, let it be F. Coming to the last line of the first stanza, for last word overhead, is it rhyming with any of the word? Yes, overhead is rhyming with the word bed, overhead. So bed को हमने क्या मान के चला था? E. So overhead will also be, you know, it will be also E, okay. So अब rhyme scheme क्या बन गया? A B C B D E F E, and this rhyme scheme is followed in the next two stanzas also. Okay, so the rhyme scheme of this whole poem is A B C B D E F E. In this way you have to find out the rhyme scheme of any of the poems. Okay, fine. Now we'll move on to the next thing. Okay, yeah, alliteration. Okay, what do you mean by alliteration? Alliteration is another poetic device that is used in this poem. Okay, so alliteration basically it is, you know, something where when the consonant sound is repeated, okay, one after another, or maybe, you know, in short, or just after a few words, it is called alliteration. Okay, I'll explain this in simple words. In a line, okay, if any one particular consonant sound is repeated more than once, it is called alliteration. Consonant sound, you know very well, except A, E, I, O, U, all other, you know, sounds are consonant. Okay, so in the first line of the first stanza, let us find out, when the humid shadows hover. Okay, now what is happening? There are two words, okay, humid and hover. Both the words are starting with the consonant sound H. Okay, this is called alliteration. Okay, if you find these type of similarities, that is the example of alliteration. Okay, coming to the next line, overall the starry spears. Now there are two words in the second line, starry and spears, and both the words they start with the same consonant sound, that is S. Okay, that is why I have underlined these two, I mean the repeated sound, I have underlined it. Okay, starry spears. So this is the example of alliteration. Then coming to the fifth line, what a bliss to press the pillow. Press the pillow, you know, press and pillow, two words are there, and both the words they start with the same consonant sound, and that is what? P. This is also an example of alliteration. Then coming to second last line of the first stanza, and lie listening to the patter. Lie listening. Okay, both the words starting with the same consonant sound L. So this is called alliteration. Okay, so in the next two stanza also you will find some examples of alliteration. Fine. Then coming to onomatopoeia. Onomatopoeia, what is onomatopoeia? It is a way through which
the poet creates sound in a poem. Okay, so it is a way through which the poet creates sound in the poem. So if you go through the poem, you will find two words, tingles and patter. These two words, they create sound in our minds, okay, tingles and patter. Okay, tingling sound, when we hear this word, automatically we can hear some sort of sound in our minds. So these two words are the example of onomatopoeia. Onomatopoeia क्या होता है? ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसके माध्यम से पोएट क्या करता है, रीडर्स के दिमाग में एक साउंड क्रिएट करता है पोएम के माध्यम से, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को यूज करके। तो जब भी हम टिंगल्स वर्ड सुनते हैं पोएम में, तो हमारे दिमाग में एक साउंड सुनाई देता है ना, सो उसको कहते हैं ओनोमेटोपिया। ओके, देन कमिंग टू पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, इन हिंदी वी कॉल इट मानवीकरण, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हाट? व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग is given the attributes of a living thing, it is called personification, ठीक है। एक जीवित चीज के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, एक जीवित व्यक्ति के या जीवित एक जानवर के अंदर, बर्ड के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, अगर वो जानवरों वो किसी निर्जीव वस्तु के अंदर डाल दी जाए, दैट इज कॉल्ड personification. Now in this line let us find out, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Now what is happening? Who is weeping? Normally who weeps? Human beings, they weep. Animals, they weep. Okay, but have you ever seen darkness weeping? No. Okay, darkness never weeps. Okay, but in this poem the poet is deliberately saying that the darkness is weeping. Okay, so darkness is what? A non-living thing. And how can a non-living thing weep? It is not possible, but the poet has deliberately used this word. So this is called the example of personification. Okay, so this is the example of personification. So here we come to the end of this poem, and I hope that you have understood this poem, you have understood the explanation part, you have understood the poetic devices that are used in this poem. Still, my dear children, if you have any confusion, you can ask me in the comment section, and I will definitely respond to your queries. Please feel free to ask questions, because you are all in class 9th, and these poetic devices, literary devices will be a part of class 9th, 10th, 11th, 12th ahead. So you should be well aware of these terms. Okay, so that was all from this video. I hope everything is quite clear to all of you. So take care and God bless you.